Did you know that in India more than 1 million tons of textiles are thrown away every year? Most of this comes from household sources. This is from our homes. But every piece of clothing, every shred of discarded cloth, no matter how torn or tattered, can be kept out of the landfills. The most obvious solution is to donate your clothes, for them to be given a second life. But what happens to your clothes once you've donated them? Where do they go? And who gets to wear them? My name is Sajan Veer Abrol and I am the founder of Clothesbox Foundation. As a 22-year-old, I had nothing but time to invest. And our idea was to make clothes accessible to those in need. Sajan Abrol is the founder of the not-for-profit organization Clothesbox Foundation. It started in 2014 with only 200 clothes that the organization had collected in 3 months. But such was the impact of this small initiative that actor Amitabh Bachchan volunteered to be a part of the donation drive and gave them some of the costumes he wore in his movies. Today, the foundation collects up to 25,000 clothes per day. Our vision moved a step forward when we realized that as a unit, we can help families also. We can employ people. We can recycle more. We can do more than just distributing clothes. Our first major milestone was helping the victims of Jammu and Kashmir flood. So in 5 days, we helped almost 1,000 people. And that is when we realized how much potential an idea could have. During our second year, we helped the victims of Nepal earthquake and Chennai floods with clothes and ration because हमने एक proper collection का network बना लिया था. And that time the beneficiary count was 2,000. They are first divided into clothes that are fit to be distributed and clothes that can't be. यहाँ पे सारी की सारी प्रोसेसिंग की जाती है. तो जैसा कि आप देख रहे हो रैक्स के अंदर डिफरेंट कैटेगरीज बनाई हुई हैं हमने और जितनी कलेक्शन है वो अलग अलग कैटेगरीज में बट जाती है. अब आप देखेंगे यहाँ पे सिर्फ इंडियन वेयर है. इंडियन वेयर के अंदर सिर्फ सूट्स होंगी या चुन्नी होगी या साड़ी होगी. इनको अलग अलग तरीके से हम डिवाइड कर देते हैं. फिर एक सिर्फ विंटर वेयर का रैक है. तो इनको अलग अलग तरीके से हम सेग्रीगेट करते हैं. इसमें फर्दर साइज की सेग्रीगेशन भी होती है. Segregating clothes by size is crucial to the process. It helps the foundation send the right clothes to the right places. India is a land of diversity. यहाँ पे डिफरेंट रिलीजन्स हैं, कल्चर्स हैं. तो जब आपका एक कपड़ा कलेक्ट होता है, हम लोग सॉर्टिंग और सेग्रीगेटिंग यहाँ पे जो हमारी प्रोसेसिंग फैसिलिटी बनी है वो इसीलिए बनी है ताकि हम राइट स्टेट में राइट कपड़ा पहुँचा सकें. सो आई वुड नॉट सेंड अ पैंट जिसका शायद साइज़ 32 से ज़्यादा है टू अ स्टेट लाइक झारखंड. हमें लगता है कि वहाँ पे इस तरह की चीज़ डिस्ट्रीब्यूट करनी मुश्किल है क्योंकि पीपल आर वेरी मैलनरिश्ड. उड़ीसा जैसी स्टेट्स में आप चले जाओ, वहाँ पे बिगर बड़े साइज़ का कोई कॉन्सेप्ट ही नहीं है. वहाँ पे आप एक्सेल पीस लेके जाओगे वो आप हम लोगों को किसी काम का नहीं है. तो हम लोगों के जो हम लोग प्रोसेसिंग करते हैं वो यही है कि आप कैसे किसी कल्चर का, कैसे किसी रिलीजन का, कैसे किसी वेदर का ध्यान रखते हुए उस स्टेट में उस कपड़े को पहुंचा रहे हैं. Clothes always hold a value. It needn't only be monetary, but emotional as well. Clothes that are waste for some can be a luxury for others. हमने पीछे एक सर्वे निकाला था जब हम डिस्ट्रीब्यूशन पे जाते थे तो हमें पता चला कि जिन कम्युनिटीज़ में हम जा रहे हैं वहाँ पे अपने एक इंटायर लाइफ टाइम में एक बंदा सिर्फ 5 बार नए कपड़े लेगा और हम लोग और 5 बार क्या 5 शायद 5 ही कपड़े दोबारा लेगा. वो कहीं से मांग के पहन लेगा या अपने रिश्तेदारों के पहन लेगा. छोटे हो गए बड़े हो गए ऐसे मांग के ले लेगा. जो इमोशन है इनके पीछे वो भी बहुत स्ट्रॉन्ग है. जब किसी के हाथ में एक पुराना कपड़ा आता है तो उसको लगता है हाँ वो कभी भी ये नहीं मानता कि ये किसी का यूज़ किया हुआ है. उसको सबसे पहले ये दिखता है कि यार मेरी पुरानी शर्ट फटी हुई थी या मैं इतने टाइम से वही गंदे कपड़े पहन रहा हूँ तो आज मुझे एक नया जोड़ा मिला है, इसको मैं दोबारा पहन सकता हूँ. But what happens to the clothes that are not fit to be distributed?
Those clothes are sent to the recycling facility where the foundation makes school bags for children, blankets for distribution and other such things. हमारी सेग्रीगेशन के बाद हम एक पूरा लॉट ऐसा निकालते हैं जो कपड़े डिस्ट्रीब्यूशन के लिए सही नहीं है। जैसे आप ये देख रहे हैं, इस पे बहुत सारे दाग लगे हुए हैं। तो किसी बेनिफिशियरी का जिसको कपड़े मिल रहे हैं उसकी डिग्निटी का ध्यान रखते हुए ये कपड़े अलग कर दिए जाते हैं। आप ये कपड़ा देखेंगे तो इसके अंदर ये देखिए, ये फटा हुआ है। तो इस टाइप के बहुत कपड़े आते हैं हमारे पास। तो ये पूरा का पूरा लॉट हम अपनी रीपर्पसिंग फैसिलिटी में भेज देते हैं। अगर हम 100 कपड़ा कलेक्ट कर रहे हैं तो उसमें से अबाउट 40% कपड़ा वेस्ट है। उस पर इन्हीं रीजंस की वजह से ये कपड़ा रिजेक्ट हो जाता है। बाकी का 60% डिस्ट्रीब्यूट होता है और रिमेनिंग 40% का क्या होता है वो मैं आपको दिखाता हूँ। अब ये कटिंग डिपार्टमेंट मेरी मदर का है और ये यहाँ पे पूरी की पूरी प्रोडक्शन और प्रोसेसिंग देखती है। बेसिकली ये कपड़ा जब हमारे पास आ गया, ये कपड़ा आपने यूज़ कर लिया, आपने 1 साल यूज़ किया, 2 साल यूज़ किया, इसकी अभी एज है, ये अभी ख़त्म नहीं हुआ। तो इसकी एज को और लंबा बनाने के लिए हम इसका एक प्रोडक्ट बना देते हैं, वो किसी नीडी के काम आ जाता है। इसको भी एज मिल जाती है, उसका भी काम हो जाता है, हमारी वुमेन एम्पावरमेंट भी हो जाती है, हम अर्थ को भी सेव कर रहे हैं और साथ में हम इसे लैंडफिल पे जाने से कुछ साल और बचा रहे हैं। ये हमारे फैब्रिक की कटिंग आई है पीछे से जो वेस्ट फैब्रिक था, और इसको अब हम यहाँ पे स्कूल बैग या ब्लैंकेट बनने के लिए दे देंगे। तो हम किसी गांव में कभी कपड़ा डिस्ट्रीब्यूट करने गए थे, तो हमने वहाँ पे देखा कि बहुत सारे बच्चे थैला लेके जा रहे हैं। तो हमें लगा हम कुछ 50 बैग इनको बना के दे देते हैं, क्योंकि हमारे पास यहाँ पे फैसिलिटी थी। और हमें रियलाइज़ हुआ बाद में कि इतनी ज़्यादा डिमांड है, और उस साल हमने 5 लाख बैग्स बनाए थे। तो अब हमारा काफ़ी फोकस है कि हम जितने स्कूल्स हो सकते हैं इंडिया में जहाँ पे ज़रूरत है, पाठशालाज, रोड साइड स्कूल्स, जहाँ पे वॉलंटियर्स अपनी तरफ से पढ़ा रहे हैं बच्चों को, वहाँ पे हम इन स्कूल बैग्स को पहुँचा देते हैं। The biggest concern remains the clothes that have fallen apart into scraps. You'd imagine there isn't much use of these scraps, but Clothes Box Foundation has found the perfect solution which keeps our furry friends in mind. जब आप कोई भी कपड़े का काम करते हो, पुराने में से भी आप कुछ बनाने की कोशिश कर रहे हो, तो उसमें से भी बहुत वेस्ट निकलता है। तो इस तरह की जितनी भी कतरन होती है, इसको हम पूरा साल स्टोर करके रखते हैं और इस तरह से बैग्स में भरते हैं। विंटर्स में हम जूट की बोरियां सोर्स करते हैं और उसके अंदर इन कतरन को फिल करते हैं और इस तरह से बैग्स बना दिए जाते हैं। उनको हम डॉग बेड्स बोलते हैं। और जितने भी स्ट्रेज हैं ना, जहाँ ठंड का एरिया है, वहाँ पे हम ये बिछा देते हैं और ये स्ट्रेज के लिए काम आ जाती है। और इसी तरह से जितना भी वेस्ट फैब्रिक है वो भी वेस्ट नहीं रहता। The Clothes Box Foundation is just one organization that is helping give our clothes a conscience. Do log on to ndtv.com Clothes with a Conscience for a list of NGOs that you can donate your clothes to. Because donating clothes is the most basic and easiest way to keep clothes away from landfills and do your bit for climate change. On the other side of the break, an organization helping the disabled individuals live a sustainable life through sustainable fashion.